In the last meeting, I have already discussed about the syllabus of the paper 15. Paper 15 is classical mechanics and quantum mechanics, isn't it? And I have told you that. Yes, yes. Yes, so I have told you that we have the 4 chapters as far as this semester number 5th is concerned. And for this 4 chapter, 2 chapters are, 1 chapter is belonging from the classical mechanics and 3 chapters are from the quantum mechanics section. And in that period also we have decided that we will start the classical mechanics, the first chapter of the paper number 15. So here we are going to start the first chapter of the classical mechanics, and its title is from its name only, that is the classical mechanics. All of you can see my slide please. आप लोगों को मेरी slide दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so may I start now? The title is Classical Mechanics. This is the first lecture on the classical mechanics. All of you are familiar with me, therefore there is no need to give the introduction. Now, in this particular classical mechanics, how many articles we have to cover on that day, I also discussed. Now, this slide is before you. You found that 6 to 7 articles are there, which we have to cover from the classical mechanics section, isn't it? Now, this classical mechanics is having 7 to 8 chapters, isn't it? And now the first section that we are going to deal with is the Newtonian mechanics. What is, first of all, I will try to explain that what do you mean by classical mechanics. अगर आप पेपर नंबर 15 का टाइटल देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स है मैं करेक्ट? क्वांटम मैकेनिक्स क्या है ये हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं, लेकिन पहले क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर अगर हम बात करें तो डू यू नो व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स? एनीबडी ऑफ यू कैन टेल मी बाय अनम्यूटिंग योर माइक that what do you mean by classical mechanics? Are you listening me please? सुन रहे हैं आप मुझे? Yes, sir. हाँ, तो क्लासिकल मैकेनिक्स किसे कहते हैं मैं आपसे पूछ रहा था. तो अभी तक की जो फिजिक्स हम पढ़ते आए 11th में क्या, स्कूल डेज में क्या, 12th में क्या, और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की अभी तक का बहुत सारा हिस्सा जो हम पढ़ के आए वो क्लासिकल मैकेनिक्स का था. कौन से पढ़े? मिसाल के तौर पर फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, ग्रेविटेशन, isn't it? Elasticity. Yes. Then viscosity. So this such application में हमने अगर प्रैक्टिकल की बात करें, केटस पेंडुलम, सोनोमीटर, such type of practical and such type of theoretical article we have learned so far, and all these are belonging from the classical mechanics. अब क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते किसको? तो क्लासिकल मैकेनिक्स एक शॉर्ट डेफिनेशन में अगर आपको बोलूं तो क्लासिकल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स with the study of the particles which are having a appreciable size, and whatever we are saying in the theory same can be oriented in the practical. That means there is a good agreement between theory and practical. जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम theory में बोलते हैं let us consider that this is a ball, this ball is moving from point A to point B. थ्योरी में पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में भी देखें तो आप बोल सकते हैं कि ये बॉल है, इसकी इतनी मास है, इन्हें इतने दाम यहाँ रखा हुआ है, 10 मिनट से इन्हें यहाँ से यहाँ जा रहा. जो थ्योरी में बोलते हो प्रैक्टिकल में दिखता. और बॉल की साइज भी कितनी है? बहुत छोटी है क्या? नहीं, छोटी नहीं है, अप्रिशिएबल है, माइक्रोमीटर में है, मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है या उससे ज्यादा है. तो सच टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड एज द क्लासिकल मैकेनिक्स, इजंट इट? लेकिन इसके बरखिलाफ अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बता सकते हैं कि देखो देखो ये इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहा बोल के. इज इट पॉसिबल फॉर यू? प्लीज you please unmute yourself and reply me, Simon. Is it possible? Sir. No, sir. No, that means that is the quantum mechanics, and which here जो मैंने पहले कहा आपसे, जो बड़ी बॉडी है जिसको हम प्रैक्टिकल में जो बोले, वो जो थ्योरी में बोले, जो प्रैक्टिकल में दिखता, that is called as the classical mechanics. Now, in other definition of the classical mechanics, that for the classical mechanics all the laws of Newton's are to be implemented. यानी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स है. क्लासिकल मैकेनिक्स को दूसरा नाम क्या है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स. क्यों? कि न्यूटन के जितने भी आपने पढ़ के आए, न्यूटन के लॉ सबको याद है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इजंट इट? न्यूटन्स लॉ ऑफ एनर्जी, यूनिवर्सल लॉ, energy neither be created nor destroyed, but one form of the energy can be converted into
another form. You have already learned this one. So all these Newton's laws are applicable in the classical mechanics, and therefore the classical mechanics can also be called as Newtonian mechanics. Are you getting please? आज जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हम बात करते हैं मास की, इसके अंदर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, इसके अंदर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, इसके अंदर हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, इसके अंदर हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की, इसके अंदर हम बात करते हैं एनर्जी की. सो ऑल दीज टर्म्स कौन कौन से जो मैंने अभी गिनवाए, displacement, mass, energy, linear momentum, angular momentum, energy, these are the fundamental physical concept, and these are comes under the category of what? किसकी कैटेगरी में आते हैं? कौन से मैकेनिक्स का पार्ट है ये? प्लीज. Classical mechanics, isn't it? So now, Yes. classical mechanics we are going to deal in this particular chapter. This is the introduction. Now linear momentum. अब आपको मास की डेफिनेशन बोलने की जरूरत नहीं, आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मालूम है, आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन मालूम है, लीनियर मोमेंटम की भी मालूम है, लेकिन हम यहाँ पर बता देते हैं लीनियर मोमेंटम किसको बोलते. तो एक बात और याद रखिए कि पूरे चैप्टर में हमको किसके बारे में पढ़ना है? ए पार्टिकल. द होल चैप्टर इज डीलिंग or covering with a body which is moving from one place to the another place under the action of Newton's law. यानी कि हमारे इस पूरे चैप्टर में हमारा चैप्टर किसके इर्द गिर्द घूम रहा? एक पार्टिकल जिसकी की मास m है, जिसकी की वेलोसिटी v है, जिसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, वो जो है तो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रहा है. और कौन से लॉ के तहत हरकत कर रहा? न्यूटन्स लॉ के तहत, यानी कि क्लासिकल मैकेनिकली हरकत कर रहा. वो हमारा पूरे जो है तो इस चैप्टर में स्टडी का सेंट्रल पार्ट है, यानी कि उसके इर्द गिर्द हम पूरा पढ़ने वाले हैं. So now when let us, जब भी मैं बात करूंगी let us consider a particle, तो आप समझना कि एक पार्टिकल है, उसकी मास m है, उसकी वेलोसिटी इतनी है और उन्हें हरकत कर रहा है. It is moving from one place to the another place. Now you are knowing that velocity, जब पार्टिकल हरकत करता तो उसको मास तो रहती, साथ में क्या रहती? वेलोसिटी भी रहती. Am I correct? And when the particle having the mass m and when it is moving, that means it is moving with some velocity, and mass into velocity, it is nothing but it is called as momentum. It is called as momentum. Momentum दो किस्म की रहती, linear momentum और angular momentum. Linear momentum कब रहेगी? जब उसकी मोशन लीनियर रहेगी. linear motion किसको बोलते हैं? when a particle is moving along a straight line, यानी कि जब linearly उसकी मोशन है. जब मोशन लीनियर है तो मोमेंटम भी लीनियर रहेगी. Have you got it please? समझ रहे हैं आप बात को? Yes. So Yes, sir. motion of the particle is linear. That means motion particle is moving along a straight line. Then at that time उसकी मास और उसकी वो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का प्रोडक्ट जमा उसकी मास, उसकी into इस मास, that product it is called as momentum. Mass into velocity, and momentum it is generally denoted by the symbol P. You can see on the slide, P is equals to mv. P is equals to MV. m mass into velocity, and this term is nothing but it is called as momentum, and it can be interchangeable also. It change भी हो सकती है. लीनियर मोमेंटम कैसी रहती है? उसकी प्रॉपर्टी अगर बोले तो वेक्टर क्वांटिटी रहेगी. एनीबडी ऑफ यू कैन टेल मी व्हाई लीनियर मोमेंटम इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर स्केलर समझाने की जरूरत तो नहीं ना. वेक्टर किसको बोलते हैं? स्केलर किसको बोलते हैं? स्केलर उसको बोलते हैं जिसको बताने के वास्ते खाली कीमत की जरूरत पड़ती है, वो स्केलर क्वांटिटी. और वेक्टर क्वांटिटी को बताने के वास्ते मैग्नीट्यूड भी लगता है और डायरेक्शन भी लगती है. उसको क्या बोलते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी. तो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. तो अब लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी के आप बता सकते हैं क्या? व्हाट इज द रीजन दैट लीनियर वेक्टर क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम क्यों होंगी? डायरेक्शन होगा उसमें. डायरेक्शन होना. ठीक है. अब इस लीनियर मोमेंटम किसका प्रोडक्ट है? मास का और वेलोसिटी का. मास का और वेलोसिटी का है. तो फिर इसके अंदर कौन जो है तो वेक्टर था जिसकी वजह से लीनियर मोमेंटम वेक्टर बनी? वेलोसिटी. क्योंकि मास तो वेक्टर होंगी नहीं. 1 किलो, आधा किलो ऐसे बोलेंगे ना, ये तो मास रहती. लेकिन वेलोसिटी क्योंकि ये डायरेक्शन रहती इसको, लिहाजा ये प्रोडक्ट जो कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट भी क्या बना? वेक्टर बना. वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेंगी? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी किसका प्रोडक्ट है? मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट. और
तो स्केलर ही रहेंगी, लेकिन वेलोसिटी चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। यस, इसके डायमेंशन कैसे देते हैं आपको मालूम है, 11 में पढ़ के आए डायमेंशन MLT। तो उसका MLT रहेगा, MLT डायरेक्शन में जो उसका सिंबल रहता है, मैंने यहाँ डायरेक्ट बता दिया MLT, यानी कि M0 L0 और T⁻⁻1, क्योंकि पर सेकंड ऐसा रहता ना, तो टाइम पर सेकंड T⁻⁻1। इसकी SI यूनिट क्या, इसकी इकाई क्या रहेगी, kg/मीटर/सेकंड, याद रखिए, क्योंकि मास और वेलोसिटी है, मास का में गिनते किलोग्राम में, वेलोसिटी का में मीटर पर सेकंड में, तो इसकी मीटर पर सेकंड इनटू मीटर पर सेकंड। So this is the unit of linear momentum, and it can also be expressed, को जो है तो आप सिंबॉलिकली भी ऐसा बता सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम x डायरेक्शन में भी रहती मोमेंटम, क्योंकि जब कोई पार्टिकल हरकत कर रहा तो x डायरेक्शन में, आप जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन है कि नहीं। तो मोमेंटम x डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा वो डायरेक्शन में उसकी मास भी जाएंगी, वो डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी भी जाएगी, लिहाजा वो डायरेक्शन में उसकी क्या रहेंगी, लीनियर मोमेंटम भी रहेंगी। तो आप इसको जो है तो कंपोनेंट के वाइज से बता सकते हैं कि px यानी कि मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन, px इज इक्वल टू m इनटू, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, px इज इक्वल टू px, यानी कि मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अलोंग x डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। सिमिलरली py इज इक्वल टू mvy और pz इज इक्वल टू mpz। नाउ न्यूटन्स एंड मोमेंटम, न्यूटन का लॉ क्या बोलता है मोमेंटम के ताल्लुक, न्यूटन का सेकंड लॉ आपको मालूम है, 3 लॉ है न्यूटन के। पहला लॉ तो इनर्शिया बताता, जमूद है क्या नहीं। दूसरा लॉ क्या बोलता है, F इज इक्वल टू ma, डू यू रिमेंबर, F इज इक्वल टू ma, सेम इक्वेशन आई हैव राइट हियर, समेशन फोर्स इज इक्वल टू ma, ma में मास है, a क्या है, एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time। लिख सकता हूं मैं ऐसा, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर दिख रहा आपको, yes sir, इक्वल्स टू dv/dt मैं लिख सकता ऐसा। ये इक्वेशन को yes, इक्वल्स टू dv/dt को मैं ऐसा भी लिख सकता कि d को बाहर लाता हूं, m चूंकि कांस्टेंट है इसको अंदर लेके जाता हूं, d ऑफ m/dt लिख सकता था कि मैं इसको ऐसा। yes sir, लिखने से इक्वेशन की सेहत के ऊपर कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं, no, लिहाजा मैंने इसको ऐसा लिखा। जब आपने ब्रैकेटेड क्वांटिटी में mv देखा तो mv क्या है जी, p है लीनियर मोमेंट, लिहाजा dp/dt लिख सकता था क्या मैं, नहीं, तो लिहाजा टोटल फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। dt, क्या मैं ऐसा बोलूं कि आप सेकंड लॉ ऑफ लीनियर, सेकंड न्यूटन्स लॉ को ऐसा बोलूं क्या, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैन आई से लाइक दैट, isn't it, and yes, this is nothing but this is the Newton's second law, time rate of change of linear momentum of the particle is equal to net force acting on the particle, this is the nothing but this is the Newton's law, second Newton's law, isn't it। ये क्या है न्यूटन का, F इज इक्वल टू ma को कैसा बोल सकते हैं, न्यूटन अल्टरनेट डेफिनेशन कैसी, स्टेटमेंट कैसी देंगे न्यूटन सेकंड लॉ क्या, कि टोटल फोर्स, isn't it getting please, total force yes, yes, acting on the particle is nothing but rate of change of, किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसके साथ चेंज, with यस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये पार्ट जो मैंने ऊपर का बताया तो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, मास मोमेंटम वगैरह, लेकिन हमको इसके अंदर कंजर्वेशन एक पढ़ना है। कंजर्वेशन लफ्ज सुने होंगे आपने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सुने क्या ये, कंजर्व हुआ बोलते, कंजर्व, कंजर्व के लफ्जी मायने है कांस्टेंट रहने के। अब यहाँ पर बात चढ़ी है पार्टिकल के मोशन की, तो पार्टिकल जब एक जगह से दूसरी जगह जाता तो इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज को जाता, बराबर है, हरकत करता है भाई पार्टिकल, तो पार्टिकल की मोमेंटम इनिशियल मुकाम पे कुछ रहती और फाइनल मुकाम पे कुछ रहती। अगर इनिशियल मुकाम की टोटल मोमेंटम अगर p1 है और फाइनल मुकाम की पोजीशन अगर मोमेंटम अगर p2 है, और अगर p1 इज इक्वल टू p2 है, यानी कि टोटल मोमेंटम इज सेम, इसका मतलब मोमेंटम कैसी है, कांस्टेंट है, isn't it, are you getting please। अगर किसी yes sir,
की हरकत करते वक्त मोमेंटम इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में बराबर बराबर रहती है, तो दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट के Constant. कांस्टेंट रहना। एनर्जी, Yes. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते थे, आपने क्या समझ जाना कि वो क्वांटिटी कैसी रह रही, Constant. यहाँ पर हम बात कर रहे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हम मोमेंटम के बारे में पढ़े, आगे एनर्जी का देखें। अब किसकी मोमेंटम की बात चल रही बाबा, पूरे चैप्टर में किसकी बात करने की बोला मैं आपको, Particle. तो व्हेन एक पार्टिकल रहेगा या सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी सिस्टम बनी हुई रहेगी जो एक ही पार्टिकल पर मुश्तमिल रहेगी, या सिस्टम दो या दो से ज्यादा पार्टिकल का मजमू रहेगी, लेकिन तब भी वो सिंगल पार्टिकल ही बोलेंगे। देयर में भी ए सिंगल पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इजंट इट? जैसा गैस में आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते नहीं कि 2, 4, 5 पार्टिकल रहते, सिस्टम रहते, तो जब एक या दो पार्टिकल इज एन आइसोलेटेड सिस्टम इंटरैक्ट, आइसोलेटेड का क्या मतलब जी, जिसको बाहर से कुछ नहीं मिल रहा, समझ में आ रही के बात? ये पार्टिकल है, गैस का पार्टिकल, गैस आइसोलेटेड है बोलते, क्या मतलब कि बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही, अंदर के अंदर ही पार्टिकल हरकत कर रहे, जो भी कर रहे। गैस के अंदर क्या करते, पार्टिकल अंदर के अंदर हरकत करते, बाहर से तुम दबाव दे रहे क्या, प्रेशर दे रहे क्या, बाहर से कुछ लगा रहे क्या, नहीं। आइसोलेटेड बोलते, उन्होंने बहुत आइसोलेटेड है बोलते, मतलब क्या, फला इज वेरी आइसोलेटेड, मतलब क्या जी इसका, किसी से मिलते जुलते नहीं, बाहर वालों से इनका लेना देना, गेटिंग प्लीज, क्या नहीं है इनका लेना देना, नहीं है, हाँ, बाहर से बाहर का कोई चीज आ रही नहीं, अंदर से कुछ चीज बाहर जारी नहीं, जा रही। हाँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब दो या दो से ज्यादा पार्टिकल जो कि किसके हैं, आइसोलेटेड सिस्टम के हैं, यानी कि फोर्स वगैरह कोई बाहर से लग रही नहीं, तो एट दैट टाइम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। एक पार्टिकल है जिसके दो पार्टिकल्स है, तो सिस्टम के अंदर बाहर से फोर्स लगा रही नहीं, अंदर से फोर्स बाहर आ रही नहीं, जो भी चल रहा अंदर के अंदर ही चल रहा, तो उस वक्त टोटल मोमेंटम कैसी रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगी। और यही को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी, सॉरी मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बात कर रहे थे मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, not necessarily the momentum of the individual particle. This also tells us that total momentum of an isolated system is equal to its initial momentum. अब इसको मैथमेटिकल, इतना समझ में आया क्या प्लीज, थियोरेटिकल? यस सर। अब इसको मैथमेटिकल देखते हैं। अब पहला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्यों, क्योंकि पार्टिकल की मोशन कैसी है, लीनियर मोशन है, लिहाजा जब लीनियर मोशन है तो उसकी मोमेंटम भी कौन सी मोमेंटम रहेंगी, लीनियर मोमेंटम। समझ में आ गई बात? भाई पार्टिकल कब आता, जब उसको कोई फोर्स दी जाती या उसकी खुद की अपनी फोर्स रहती है कि नहीं। भाई हम चल रहे, मैं चल रहा हूँ, एक तो मुझे कोई यानी कि बाहर से फोर्स लगाए है कि नहीं, यानी तो फिर मैं अपनी, या फिर अपनी फोर्स, यानी तो मैं अपनी ताकत फोर्स से चलूँ, है मैं करेक्ट? यानी कि पार्टिकल को हरकत में आने के लिए क्या लगता है, इतना तो आप समझ गए कि फोर्स लगती। ये तो हमको कौन बोला, न्यूटन के सेकंड लॉ ने भी बोला, है मैं करेक्ट? तो F is equals to m है। Now if a force is acting on the particle, पार्टिकल, अब हमेशा याद रखिए कि पार्टिकल की मास m है और उसके ऊपर F नाम की कुव्वत लग रही है। कौन बोल रहा है ये, न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ, F is equals to m है, बराबर है, यानी कि क्या है, F is equals to m, में प्लीज, dp by dt is equals to d dt of m, बीच पर क्या है अपन ने, वहां पर P क्या है, लीनियर मोमेंटम है। अब हम ये बोले कि if the external force acting on the, क्योंकि सिस्टम कौन सी थी बोले, आइसोलेटेड बोले, यानी कि पार्टिकल को किसी ने ढकला नहीं, यानी कि बाहर से एनर्जी नहीं मिली, इसका मतलब उसके ऊपर लग रही हो कैसी है, जीरो है, एक्सटर्नल जीरो है ना, बाहर से कोई ढका रही, वो जो कुछ चल रहा जीरो है। तो अब हम ये बोल रहे कि if the external force acting on the particle is zero, यानी कि ऊपर इक्वेशन में मैं किसकी जगह पे जीरो रखूं जी, F की जगह पे, बराबर है, यस, F की जगह पे अगर जीरो रखा तो मेरी ऊपर की इक्वेशन कैसी बनती, dp by dt is equals to d dt of d is equals to क्या, जीरो। यानी कि मैंने जो थोड़ी देर पहले अभी बोला था कि इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम इज रिमेन कांस्टेंट, डी डी टी बोले क्या, डेरिवेटिव, बराबर है, यस, डेरिवेटिव किसका जी, P का, P का, गैस कितना आया, विद जीरो,
Zero. किसका डेरिवेटिव Yes. आता थी मैथमेटिक्स के तहत? कांस्टेंट जिसमें डेरिवेटिव जीरो आता है, मैं करेक्ट? yes, यहाँ पर जिसकी कर्व जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव, मैथ क्या बोलता तुम्हारा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो आता. आपके यहाँ पर अभी मैं जिस अंदाज से करते गया dp by dt जीरो आया, यानी d dt ऑफ mv मास इनटू वेलोसिटी, यानी मास इनटू वेलोसिटी का डेरिवेटिव जीरो आया. इसका मतलब Yes. मास इनटू वेलोसिटी की टर्म कैसी हुई? कांस्टेंट हुई. अगर मास इनटू वेलोसिटी है क्या, क्या नाम से पुकारते हैं इसको? F फोर्स. एफ फोर्स है, लेकिन m इनटू v क्या है? मोमेंटम. हाँ, मोमेंटम. इसका मतलब मोमेंटम का डेरिवेटिव क्या आया? जीरो. जीरो. कैसी है? कांस्टेंट है. खत्म हो गया. दिस इज नथिंग बट इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. यस सर. अब ये कब जीरो होती है? तो इसके ऊपर एक्सटर्नल लगने वाली फोर्स जीरो. जीरो राइट. स्टेटमेंट को मैं ऐसा बोल सकता कि जी thus in absence of external force the linear momentum of the particle is conserved in the Yes. yes. जीरो का मतलब अच्छे अल्फाज में क्या बोल सकते हैं उसको? thus in the absence of external force linear momentum of the particle is conserved या constant, या यहाँ पे अच्छा लफ्ज कौन सा? conserved. Conserved. Yes. कुछ क्या नाम से पुकारने का? This is nothing but it is the conservation theorem of free particle. isn't it? चले आगे. Yes sir. Now conservation of momentum, मैं जैसे पहले बताया कि सिंबॉलिकली भी आप उसको लिख सकते हैं कि टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू P1 प्लस P2. कैसी रहना चाहिए? कांस्टेंट. Constant. यानी तो ऐसा बता कि टोटल मोमेंटम इन इनिशियल स्टेज प्लस टोटल मोमेंटम इन इनिशियल स्टेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल is equal to total momentum of the first particle in final stage plus total momentum of the second particle in final stage. यानी कि P1 I1 plus P2 I is equals to P1 F plus P2 F and so on. So that means with the help of component also, या Px Py बताओ, या Pz P बताओ, या P1 P2 बताओ, जो आपको सिंबल यूज करना है करो. कंपोनेंट की शक्ल में भी आप बता सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मुद्दा क्या है, इसका टोटल हासिल क्या है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट कब? व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. या इट एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिंग, इट इज नथिंग बट इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब आपको मालूम है कि दूसरी में मोमेंटम रहती, कौन सी रहती जी? वो एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम. नाउ एंगुलर मोमेंटम का क्या फार्मूला है? जब मोशन उसकी एंगुलर रहेंगी तो उस वक्त कैसे लिखते हैं? एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू R इनटू P बराबर है. तो क्या है? M इनटू V. लीनियर मोमेंटम के वक्त फोर्स रहता है, एंगुलर मोमेंटम के वक्त मोमेंट ऑफ फोर्स रहता है, टार्क. उसको टार्क बोलते हैं. आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, मैंने एक पार्टिकल बताया हो, उसका सेंटर है, पार्टिकल गोल घूम रहा, तो उस वक्त जो है J के जगह पे टो लिख सकते हैं हम. टो इज इक्वल टू R इनटू F. R क्या है? रेडियस वेक्टर. समझते हैं रेडियस वेक्टर? सेंटर से हरकत करते पार्टिकल के ऊपर जो लाइन गिराते, रेडियस जिसको बोलते, तो समझता ना? यस सर. यस यस. अब ये ऊपर की इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ऐसा कर सकता है क्या? dj by dt is equal to d dt of r into p. कर सकता है ऐसा? इस तरह से करे तो dj by dt is equal to ये टोटल r into f इधर लेकर आया, dr by dt into p जैसा कि वैसा. फिर पहले वक्त ये कांस्टेंट d का डेरिवेटिव, लेकिन dr by dt into p तो ये v है और ये into m into ओवरऑल अगर देखें तो डेरिवेटिव क्या निकलता है? dj by dt is equal to टो. j क्या है? एंगुलर मोमेंटम है. और टो क्या है? एक्शन फोर्स ऑफ फोर्स, यानी कि टार्क है जो पार्टिकल हरकत करते पार्टिकल पे रखती. जैसा वहां एफ था, यहाँ टो है, मोमेंट ऑफ फोर्स है. एफ इज इक्वल टू क्या था? या डीपी बाय डीटी इज इक्वल टू एफ था, तो यहाँ डीजे बाय डीटी इज इक्वल टू क्या है? टो है. वहां एफ इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी, तो यहाँ पे टो इज इक्वल टू डीजे बाय डीटी. टो बोले तो मोमेंट ऑफ फोर्स, यहाँ उसको टार्क बोलते. वहां P बोलते थे मोमेंटम लीनियर, यहाँ J बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम. इजंट इट? तो इसका क्या मतलब? dj by dt is equal to टो, यानी कि क्या? रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टो. टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. लेकिन ऐसा बोलूं कि अगर टॉर्क अगर जीरो है तो ये क्या बनेगा? dj by dt. अगर ये t जीरो है, जीरो बनेगा. तो मतलब कौन जीरो रहेगा? d by dt तो जीरो नहीं रहेगा. जीरो कौन बनेगा?
ये J बनेगा। J 0 बनेगा, J कौन है? कांस्टेंट है। लेकिन J क्या, कांस्टेंट। J क्या है देखिए मैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। dj by dt is equals to 0 है, इसका मतलब J कौन है? कांस्टेंट है। इसका मतलब कौन कांस्टेंट है? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। जब J कांस्टेंट है कब? जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, यानी कि टार्क उसके ऊपर 0 है। तो यही क्या करेंगे? लॉ Yes, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कौन? angular momentum. Momentum. Thus in absence of Yes, external force, the angular momentum of the particle is conserved, and this is the conservation theorem of कौन सा? angular momentum of particle. Yes. तीसरी टर्म कौन सी है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आती है? वो एनर्जी। एनर्जी क्या है? Energy. क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी वर्क में, वर्क एनर्जी में तब्दील होते। जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता तो वर्क करता। आपको मालूम है वर्क की डेफिनेशन बहुत वक्त बताया फर्स्ट ईयर में, एग्जांपल देता था मैं। इंजीनियर ने काम किया कि मजदूर ने काम किया, है कि नहीं? वर्क कौन करता फिजिक्स के लैंग्वेज में? जो एक जगह से, आर यू गेटिंग मी, एक जगह से दूसरी जगह जाने जाने वाला। तो लिहाजा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यार वर्क डन कब देंगे हम? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या Yes. dr इज डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक गया जी उन्हें? एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी ऐसा लिख सकते हैं F is equals to force 1 to 2 F dr integration, isn't it? Yes, yes. उसमें देखेंगे पहला काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। न्यूटन ने क्या बताया? F is equals to m dv by dt। अभी देख क्या है ऊपर, तो मैं F dr के जगह पे लिखूंगे जी, ऊपर जो Yes, sir. इंटीग्रेशन के अंदर जो F dr है मैं उसके जगह पे ये लिखूंगा m dv by dt। Yes. F को ऐसा लिखने के वास्ते मैं ऐसा गया तो इसको ऐसा लिख सकता कि m dv by dt into v dt। मगर dr क्या है? m dr by dt into dt, यानी कि v dt बराबर है। Yes. अब इसको ऐसा लिखोगे f dr को m d by dt, और ये इसको जो है तो वन हाफ v into v dt, ये v, और ये यहाँ का dv क्या हुआ? ये वन हाफ आता है ना d by dt। तो ये क्या हो गया टोटल? ये m अंदर लेके V square. ये d जैसा V square. क्योंकि मास क्योंकि इंटीग्रेट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन तो सेम आता। ये d यहाँ पे लिया मैंने बाहर और m इसके अंदर लेके गया, तो ये क्या हुआ? वन हाफ m अंदर आया और v इंटू वी स्क्वायर, वन हाफ m v स्क्वायर। किसको काय की इक्वेशन है जी? वन हाफ m v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी Kinetic. बराबर। Yes. इजंट इट? Yes. f dr ये क्या बना? काइनेटिक एनर्जी। लिहाजा इक्वेशन नंबर 1 को कैसा लिखूं मैं? वर्क डन फ्रॉम स्टेज 1 to 2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 f dr। f dr के जगह पे क्या लियूं? इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 d वन हाफ m v स्क्वायर। अपर और लोअर लिमिट रखूं पहले, लोअर अपर लिमिट v2 स्क्वायर, बाद में माइनस वन हाफ MV M1 V square. समझ में आ रही? जल्दी जल्दी हो रही? नहीं समझ में आ रही। तो वन Yes, sir. हाफ m v, यानी दो काइनेटिक एनर्जी एट स्टेज सेकंड माइनस काइनेटिक एनर्जी एट स्टेज फर्स्ट, दोनों का डिफरेंस क्या जी? दोनों का डिफरेंस बोले तो क्या? वर्क डन, and that is the scalar quantity one half square is defined as kinetic energy। लिहाजा मैं इसको ये जो आया था वन हाफ m v2 स्क्वायर, इसको t2 बोलता हूँ, और ये वन हाफ m v स्क्वायर को क्या बोलता हूँ? t1 बोलता हूँ। तो मैं ऐसा लिखूंगा जी w12 is equal to t2 minus t1, t1 square minus t1 square, yeah, t2 minus t1। this is nothing but total work done in moving the body from one place to another place is nothing but change in, किसका चेंज? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि पार्टिकल एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जाते वक्त उतना ही वर्क करता जिसकी उसकी काइनेटिक, यानी कि पहले स्टेज में उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 mv थी, मिसाल के तौर पर 4 जूल थी। फाइनल स्टेज में उसकी एनर्जी जब चलते गया तो हरकत बढ़ी होगी ना, हरकत में आए तो एनर्जी बढ़ती ना। Yes. तो बाद उसकी एनर्जी 8 हुई, लिहाजा 8 माइनस 4, ये जो दोनों का डिफरेंस है वही क्या है? उसका किया हुआ वर्क है। यानी कि वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम द स्टेज 1 to 2 इज नथिंग बट difference between the kinetic energy from second stage to the first stage, First stage. from Yes, sir. to the first place, and this is nothing, याद रखिए law of conservation of W is equals to, या W1 to 2 is equals to T2 minus T1। यहाँ मैंने T2 T1 किसके लिए लिया जी? काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड स्टेट, and T1 is the kinetic energy in
First stage. यानी कि दोनों के काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस तफरीक इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी theory. एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अब वैसे एंगुलर मोमेंटम का भी वो हम बाद में देखेंगे. एनी क्वेश्चन प्लीज, हैव यू गॉट इन? समझ में आया आपके? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो किसी कुछ पूछना है इसके ऊपर? पीछे स्लाइड पर जाकर कुछ बताऊं, समझ में आई बात? इसके हाँ सर, समझ में आ गया. तैयार कर लेंगे. ऑनलाइन नोट्स है, मूडल पर मैंने डाले हैं. उसके बाद और भी मेरे पास जो है तो कॉलेज में पीपीटी है. ये पीपीटी भी हम वीडियो की शक्ल में आपको लिंक भी भेजेंगे. लिंक मूडल पर भी डाल रहे हैं. ये भी याद रखिए कि हम लिंक कहाँ पे डाल रहे हैं. इसका वीडियो बन रहा, ये वीडियो हम जो है तो यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं. यूट्यूब की लिंक आपको ग्रुप पर भी भेज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और कहाँ पर डाल रहे हैं? हमारे कॉलेज के मूडल पर भी डाल रहे हैं. You got it? Moodle का पासवर्ड क्या? वो Yes, sir. सर से कांटेक्ट करके ले लेना. आपको हर एक का पासवर्ड अलग अलग बदलता जा रहा है. Are you got please? Yes, sir. With this one, we will stop here today. Anybody want to ask any question? You can ask. In addition to others, can also give the reply at the time of teacher. All of you have got चारों पांचों को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we will stop here. Thank you for your have a nice time ahead. Thank you. Thank you. We will Thank meet you, sir. on Friday or any other respective things. I will you on your concerned WhatsApp group. Thank you. Have a nice time ahead. Thank you.